So good morning again. Question number 41. Same exercise 15.2. 41. What is that? Perimeter of a square is. Huh? Perimeter of a square is. Perimeter of A square is. square Is 48 centimeter. 48 centimeter. The area of rectangle is. The Area of rectangle area of is. rectangle is 4 centimeter square. 4 centimeter square. Less than the area of square. 4 centimeter square. Less than the area of square. Less than The area of square. the area of. If the length of rectangle is 4. If the length of क्या हो गया? Area of the square. If the length of Rectangle is 4 centimeter. rectangle is 4 centimeter Greater than greater than its breadth. then Find the perimeter of its rectangle. breadth. BREADTH. Find Find the the perimeter of rectangle. perimeter of rectangle. कैसे होगा? पेरीमीटर तो स्क्वायर की साइड निकाल लीजिए. Solution. Perimeter दिया हुआ perimeter of square 48 centimeter. Side of square is equal to कितना हो जाएगा? 7 centimeter. Clear? नहीं 12 आएगा. 12 14 आएगा. 48 है वो. ठीक. ऊपर भी गलत लिखा है, वहां पे भी सही करिए. area of square 4 into 4. square is equal to side square 4 square 12 square. 16 centimeter. 12 square. क्या करा रहे हो यार? मैंने फिर चेंज किया था, बोला था मैंने. Forty-four 144 centimeter square. ठीक. Area of rectangle is equal to. Area of rectangle is equal to 144 minus 4. 140 centimeter square. अब let breadth BREA breadth of rectangle is equal to X. x centimeter. तो लेंथ कितनी हो जाएगी? X plus 4. लेंथ कितनी हो जाएगी? x plus 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन. ठीक. सो एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा? लेंथ कितनी है? x plus 4 इंटू एक्स. एरिया कितना दिया हुआ है? 140. 140 is equal to X square plus 4x. x square plus 4x. 4x. X square This plus implies 4x x is square equal plus 4x to minus 140 is equal to 0. ऐसे फैक्टर्स करो जिनका की डिफरेंस 14 minus 10. x minus plus 14x minus 10x minus 140 is equal to 0. x plus 14x minus अंदर साइन चेंज हो जाए plus 140 is equal to 0. x common x plus 14 minus 10 common x plus 14 is equal to 0. This implies x minus 14 or x minus 10 is equal to 0. तो x is equal to minus 14 आ गया and x is equal to minus 10 आ गया. minus 10 नहीं plus 10 आया. प्लस 10 आ गया. तो ब्रेथ क्या हो जाएगी? 10. 10 सेंटीमीटर. लेंथ क्या हो जाएगी? 14. 10 plus 4
14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 14 प्लस 10, 2 इंटू 24, 48 48 सेंटीमीटर। क्लियर? छापोगे? नहीं। अगला क्या है? 42। डायग्राम बेस्ड है क्या? हाँ। करेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि वैरायटी जितनी कर लो, हालांकि बहुत हो गए क्वेश्चंस, इतने भी काफी है। वैसे तो क्वेश्चंस की लिमिट नहीं होती, लेकिन चलो एक्सरसाइज है, दैट शुड बी कंप्लीटेड। हाँ, कौन सा? 42. 42 बोलो। In the figure ABCD, इन the द figure given figure इन द given figure given लिख लीजिए। इन द given figure गिवन फिगर ABCD ABCD is a rectangle is a rectangle with with sides sides AB is equal to 10 AB is equal to 10 10 क्या? centimeter, पूरी चीज बोला कर। BC is equal to 8 सेंटीमीटर। हाँ, HAD and BFC are equilateral triangles. HAD and BFC are equilateral DFC are triangles. equilateral triangles. AB and DCG are AB AEB 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 and DCG and CG DCG triangle are are right angle triangle, all right angle triangle, isosceles triangle, right angled isosceles triangle, angled isosceles isosceles angle. triangles. Find the area of shaded region. Find and the perimeter of shaded area of shaded region and perimeter of the figure. and perimeter Meter of the figure. of the figure. फिगर डायग्राम क्या है? हमें लग रहा है ये डायग्राम होगा। ये 10 है, ये हो गया रेक्टेंगल, ये 10 होगा, ये होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन पर ट्रायंगल्स बने सारे। दो राइट एंगल है, दो राइट एंगल भी तो बनाइए। हम्म, कोई लग ही नहीं रहा राइट एंगल। बना देते राइट एंगल भाई। ठीक है, कुछ तो लग रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 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 कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। जब 8 ये है तो 8 ये भी हो जाएगा, 8 ये भी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बात आती है इसकी, इनका एरिया तो निकल आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए पहले। वो तो निकल आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा वो देंगे। निकल आएगा। GD इनकी बात करो, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में फॉर्मूला। इनकी बात करो, इनकी
तो वही तो कह रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, इनके वो बताओ क्या है नाप। क्या ये इधर से शुरू हुआ है। इनकी क्या नाप दिए हैं? अच्छा अरे पॉइंट तो दिए हैं। हाँ हाँ, ABCD स्क्वायर वाला है। ABCD। हाँ, ई जो है ABE है, ABE ए B। ये वाला। हाँ, हाँ, और वो BCF है, बी CF। BC ये DCG, हाँ DCG, G और वो H है। H। ठीक है, सो निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। शुरू करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड कितनी है 8 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 64। 16। कितना आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, राइट। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू 10 इंटू 8 कितना आ गया 80 80। क्लियर। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। कौन सी स्टेप? अरे नेक्स्ट क्या करेंगे, कौन सी स्टेप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। अरे गधे, क्या किया हमने अभी। तो उसको इंटू 2 भी तो कर उससे दीजिए। क्या लेना देना। तो दोनों का आ अरे जाएगा। पहले इसका एरिया निकाल। इन ट्रायंगल ABE as triangle ABE and CDG are isosceles right एंगल ट्राइंगल्स। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो किसी एक पे ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE, इसको x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं। ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। तो बाई P थ्योरम क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्लियर। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 100/2 कितना 50 है। x कितना हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा? हाँ, ये तो सेंटीमीटर ही आएगी 5√2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इनका एरिया कैसे निकालोगे। एरिया ऑफ ABE हाफ इंटू इक्वल टू एरिया ऑफ CDG इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, इनमें से बेस दोनों, बेस और हाइट दोनों ही सेम है, एक बेस होगा एक हाइट होगा। तो क्या हो जाएगा 5√2 इंटू कितना हो जाएगा 50/2। 50 इंटू 2 कट गया 50/2 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। क्लियर। अब एरिया ऑफ, ये पूरी शेडेड है, एरिया ऑफ होल शेडेड लिख दो भाई, शेडेड इसमें तो दिख नहीं रहा। शेडेड फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटू
area of equilateral triangles plus area of rectangle plus area of isosceles triangles twice into area of equilateral triangle कितना आया था 16 into √3 यही था प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था 80 इसका कितना आएगा 2 into 50 कितना हो जाएगा भाई 16 दूनी 32 √3 प्लस 100 180 कितना आ रहा है 185.42 कितना आ रहा है टोटल एरिया कितना आ रहा है 185.42 आ रहा है 185.42 ये 2 into 50 आपने क्यों किया जब आपने ऊपर भी 2 कर चुके हैं कहाँ 2 कर चुके ये तो उधर एरिया आगे 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 कहाँ आगे 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 ये तो 50 वो होगा आगे उधर कोने में हाँ √2 into √2 क्या होगा तो 5√2 into हाँ, 5 तो ये तो एक ही का एरिया निकलेगा 50 हुआ ना ये 25 यहाँ तो 25 आएगा ना 25 आएगा ठीक है तो 25 लिखेंगे यहाँ पे फिर यही बताओ ना ये चीज जो चीज बताने वाली वो नहीं बताएंगे 50 क्यों कर रहा भाई जब एरिया एक का निकालेंगे तो 25 निकालेंगे 50 क्यों कर रहा है मैंने थोड़ा किया तो ये 50 25 दूनी 50 हो जाएगा ये 130 130 आएगा 185.42 इसको 32 से मल्टीप्लाई करो इंटू 1.732 प्लस 130 इसको कर भाई 173 55.42 32 निकालो दूनी 4 दो 3 6 214 के 4 हाँ 2 1 कम 2 1 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 7 21 3 1 कम 3 2 5 4 6 6 12 के 2 हाथ से ले 14 4 1 5 55 55.55.424 प्लस 130 कितना आया 185.424 कितना आ रहा है 185.42 क्लियर अब क्या निकालना है हो गया अरे कहते हो क्या पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन पेरीमीटर क्या निकलेगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ठीक है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्रीज अंदर की नहीं तो क्या हो जाएगा यहां से शुरू कर लो या दोनों ले लो इस ट्राइंगल की दोनों साइड 8 प्लस 8 इसकी दोनों साइड एक्स की वैल्यू क्या आई थी 5√2 प्लस 5√2 इसकी साइड वही इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई दो है क्लियर तो 8 दूनी 8 8 16 और दूनी 32 प्लस ये क्या हो जाएगा ये 10 दूनी 20√2 एक मिनट 20√2 आ गया 20√2 इसको ऊपर थोड़ा रब करना पड़ेगा यहां पे रब कर लेते हैं इसको यहां पे कर लेते हैं यही आ रहा है कुछ पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 प्लस 20 इंटू 1.41 ब्रैकेट के बाहर इसमें तो आंसर ऐसे लिखा है 4 ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस 5√2 हाँ तो ऐसे ही कर लो ब्रैकेट 4 बाहर होगा 8 प्लस 5√2 अगर इस तरह से लिखा तो ये हालांकि पता नहीं हमें 4 8 32 4 20 ठीक है ये हो गया So this is what about 42nd question. So we'll stop it here today. So
नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस वी आर लेफ्ट विथ, है ना? तो बोल दे हाँ या ना, ऊपरी क्या हिला रहा है? यस और नो बोलो. 6 क्वेश्चन बचे हैं. ओके, थैंक यू.